Students, now we explain the buccal cavity region. Buccal cavity, you know, buccal cavity present in between upper jaw, that's the region of palate, and palate is two types, hard palate and soft palate. Hard palate and soft palate. So, this is the upper jaw region and one is the lower jaw region, and you know lower jaw region found tongue, and in between this palate and tongue, or you say that upper jaw and lower jaw, the region is called buccal cavity. Okay students, this buccal cavity is most important. Suppose this is the mouth part, in between two lips is called the mouth, and inner part of the mouth is a vacant area, and that area is called the buccal cavity. And the hard palate, first is the hard palate, it forms with the help of maxilla and palatine bone. That means two type of bone found in the hard palate region, one is maxilla and one is palatine. This is the bones, and these bones combinedly form the hard palate. Some grapes, or you say that groove, present in lower surface of palate, या hard palate, called rugae, and this rugae is form the grape. Suppose when you take the food, and at first time teeth form the grape, and when you have to swallow up the food, and that time the upper region, the up and down structure is called rugae, and this rugae structure holding the food, so it form the grape like structures in that area. Carnivorous animal like the tigers and any type of the carnivorous animal, this rugae is most developed, and human being is secondly developed, and herbivorous animal is poorly developed. And second is known as soft palate. This is the back part of your buccal cavity, the back region, and in this region found cartilage. That means cartilage help to form the soft palate region, and some type of epithelial tissue present in this region. Some are stratified tissue, mucosal, sometime fibrous also, fibrous epithelial tissue also. That means this type of tissues are present in the region of the soft palate, and both the hard palate and soft palate, very slight amount, the taste buds is present. Taste buds, or you say that cells are present, so they help to taste of the food. That means food molecule and their taste have to identify. Main part is the tongue. You know the tongue is the taste buds, and different type of the taste have to feel with the help of tongue. But
Small amount of taste buds, small amount, you write down, a small amount of taste buds or cells are present in the region of the hard palate and soft palate, both the region, and they also help to taste. And in some animals and in some organisms, not in human, other organisms, the smell sensation also present, smell sensation also present. आपने देखा होगा सांप अपनी जीभ को बार बार निकालता अंदर ले जाता रहता है, उसके टंग में तो है ही, और उसका जो ऊपर वाला रीजन है माउथ में, पैलेट वाला, वो भी उसको स्मेल में सपोर्ट करता है. सो सम ऑर्गेनिजम्स दिस पार्ट ऑल्सो हैव टू स्मेलिंग रीजन, बट इन ह्यूमन इसमें स्मेलिंग के लिए तो हमारा ऑल्फैक्टरी लोब है जो सेरेब्रम के लोअर पार्ट में है, लेकिन हमारे टेस्ट में भी ये थोड़े बहुत हेल्प करते हैं. तो ये पार्ट इसमें इंडिकेट करना है. बाकी जो है ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, पेरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, ये सभी पार्ट आप जानते हो. वन रीजन यूबेला, यू नो द सॉफ्ट पैलेट का जो अपग्रेड होता है, लास्ट मस्कुलर ग्रोथ, लास्ट मस्कुलर ग्रोथ जो होता है लास्ट रीजन पे, उसको उबेला बोलते हैं. और उबेला जो होता है ये मस्कुलर ग्रोथ है, और ये फूड को इनगल्फ करने में हेल्प करता है, और साथ में एक्स्ट्रा टाइम पे जो एयर आता है उसको पास करने के लिए रास्ता भी देता है. लेकिन जब फूड इनगल्फ करते हो तो जब फूड उससे टकराता हुआ अंदर जाता है तो वो पीछे की ओर जाता है, तो रेस्पिरेटरी पाथ को थोड़ा सा ब्लॉक करता है कुछ समय के लिए. तो आप तो जानते ही हो कि जब फूड लेते हैं तो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग सबसे कम होता है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल इन द रीजन ऑफ द बक्कल कैविटी. यू नो इन द रीजन ऑफ द बक्कल कैविटी प्रेजेंट टीथ, not buccal cavity, in the region of the mouth present teeth, tongue, tonsils, etc. So at first you complete the buccal cavity. Now we explain the structure of the tongue. Now we explain the structure of tongue. अभी मैं आपको टंग के स्ट्रक्चर्स जो भी होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ ह्यूमन टंग्स में. ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है टंग का, और इसमें ये जो रीजन है, इस रीजन पे टॉन्सिल्स पाए जाते हैं. ये बैक पार्ट है, और यहाँ पर एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर है ऐसा. और जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ ये रियल में टंग के ट्रांसवर्स सेक्शन काटने पर या लैटरल सेक्शन काटने पर आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स क्लियरली दिखाई देंगे, लेकिन इन जनरली ये होता है. अब देखो ये जो है ये बैक पार्ट है टंग का, और जो बैक पार्ट है टंग जहाँ से अटैच हो रहा है सॉफ्ट पैलेट के नीचे वाले एरिया में, तो लोअर जो है उस पे पास यहाँ इंड पार्ट में हायोड बोन्स होते हैं, यानी हायोड बोन्स इस रीजन पे होते हैं, हायोड बोन. और हायोड बोन के इस रीजन पे ये अराइज होते हैं. इसका मतलब है कि टंग अराइज होते हैं हायोड बोन के रीजन से, यानी ये हायोड बोन के रीजन से अराइज होते हैं बैक पार्ट. और ये हो गया हमारे फ्रंट पार्ट, फ्रंट पार्ट यानी ये आगे का भाग है और ये पीछे का भाग है. अब देखो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, थिक पॉइंट्स होते हैं जो हमारा प्लेटफॉर्म में टंग बना हुआ है, और टंग में पिंक कलर होता है, ह्यू होता है. इसमें स्लाइवा एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ह्यू जा सकते हैं. टंग फोल्ड होता है आगे या पीछे, इसका मूवमेंट होता है, ह्यू होता है. ये कई कारण है, कई सवाल है जिसे आपको यहाँ सीखना है. ये देखो इस रीजन पे कुछ पैपिला होते हैं और इसके शेप थोड़े बड़े बड़े होते हैं इस तरह के, और इसके जो पेरिफेरी रीजन होते हैं किनारे पे, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. इसके किनारे पे, इसके किनारे पे, इसके किनारे पे, सभी के किनारे पे छोटे छोटे इसमें पोर होते हैं, यानी इसी के अंदर में पोर होते हैं. ये ठीक है. अब देखो इसके बाद इस रीजन पे भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जो ह्यूमन बीइंग में वेस्टिजियल है,
ये स्ट्रक्चर सीमन में नहीं होता है, बट मैं नाम लिख रहा हूँ दिखाने के लिए ताकि आपको पता चले हमारे अंदर है, लेकिन ये काम नहीं करते कुछ भी, ये वेस्टिजियल फॉर्म में रहते हैं। इसके बाद अगर मैं इसके टेस्ट बर्ड्स को ड्रॉ करना चाहूँ तो पहले ऐसे फ्रंट पार्ट, फिर थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा इस रीजन को, ऐसे। इसके बाद ऐसे। इसमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स हैं इन किनारे किनारे पे, और इसके इस रीजन पे भी बहुत सारे पैलाइट ऐसे पैपिला हैं इस तरह के पूरे रीजन में, टंग में, इस रीजन में, और यहाँ नहीं होगा, यहाँ तक। ये बैक पार्ट है, अंदर रहेंगे। ये 1/3 पार्ट जो है ये फेरेंजियल पार्ट है, वहाँ से आ रहे हैं, और 2/3 पार्ट जो है ये मस्कुलर फ्रंटल पार्ट ऑफ टंग, यानी हमारे टंग का आगे का भाग है, आगे का भाग, और ये फेरेंजियल भाग है 1/3 और 2/3। ये मेनली यही पार्ट आपको मूवमेंट में वगैरह में काम करते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं इस रीजन पे, इस रीजन पे, इस रीजन पे, छोटे होते हैं ये थोड़े, इस रीजन पे। ये टेस्ट बर्ड यहाँ भी होंगे। ये कंप्लीट हुआ स्ट्रक्चर्स। अब एक एक करके नाम देखो। ये जो आप सबसे आगे देख रहे हो, ये छोटे छोटे गोल 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 गोल, ये जो होता है इसको फंगीफॉर्म पैपिला कहते हैं। फंगी फॉर्म पैपिला। इसके बाद ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा नंबर पूरे एरिया में, यहाँ भी है, 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 सब जगह पे है, पूरे एरिया में है। इसका नाम है फिलीफॉर्म पैपिला। फिलीफॉर्म पैपिला। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये इंसानों में वेस्टिजियल होता है अलग से, यानी हमारे अंदर है लेकिन कोई काम नहीं करेगा। फोलाइट पैपिला। फोलाइट पैपिला। और सबसे बड़े आकार में ये जो आप 8 इंसानों में 8 से 12 तक हो सकते हैं। ये जो देख रहे हो गोल 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 स्ट्रक्चर्स, ये पूरे में वी शेप फॉर्म में यहाँ पर है। इसका नाम है सर्कमवैलेट पैपिला। सर्कमवैलेट पैपिला। सर्कमवैलेट पैपिला इसे कहते हैं। और ये जो देख रहे हो इसको सल्कस टर्मिनल बोलते हैं। ये जो वी शेप्ड में है, सल्कस टर्मिनल। और वी शेप्ड के बीच में जो पोर देख रहे हो, फोरामेन कैकम बोलते हैं, इस पोर का नाम है फोरामेन कैकम। और इसके ऊपर जो दोनों साइड देख रहे हो पीछे, इसे लिंगुअल टॉन्सिल बोलते हैं। लिंगुअल टॉन्सिल। ऐसे 4 तरह के टॉन्सिल पाए जाते हैं। इसमें टंग में टॉन्सिल से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन टंग के बैक पार्ट में टॉन्सिल्स है और टॉन्सिल अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहा है, लेकिन मैंने टॉन्सिल्स को ड्रॉ किया है। लिंगुअल टॉन्सिल्स इसका नाम है। तो ये था एक स्ट्रक्चर्स, जो स्ट्रक्चर्स ऑफ टंग के फॉर्म में आप अभी देखें। अब एक एक पॉइंट क्लियर करो। इसमें जो आगे वाला ये पॉइंट्स है, ये टेस्ट बर्ड के फॉर्म में स्वीट टेस्ट देता है, यानी मीठा जो टेस्ट है इसी से मिलेगा। इसको अगर मैं एक मिडिल लाइन में डिवाइड करूं टंग को, और इसके बैक पार्ट में एक ऐसा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूं, तो बैक पार्ट का दोनों रीजन, ये रीजन भी पीछे का और ये रीजन भी पीछे का, ये जो होता है ये बीटर टेस्ट के लिए होता है, कड़वा जो टेस्ट है उसके लिए। ये जो है ये सॉल्ट जो होता है, नमकीन, उस टेस्ट के लिए होता है, इधर भी इधर भी। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये खट्टापन, सॉर के लिए होता है। तो देखो बैक पार्ट बीटर, सोर, सॉल्ट एंड स्वीट, ये 4 रीजन होते हैं।
फिक्स है, और एक रीजन जो होते हैं मैक्सिमम किनारों पे और एक रीजन मिडिल में है, दैट बिटर टेस्ट जो होता है उसके लिए। तो ये कुछ रीजन है और इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन से पार्ट क्या क्या काम कर रहे हैं। इंग्लिश लेक्चर स्टूडेंट्स, यू नो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टंग एंड दिस इज द बैक पार्ट एंड दिस इज द फ्रंट पार्ट। This is fungiform papilla, filiform papilla, folite papilla, circumvallate papilla. This V-shaped structure is sulcus terminal or terminalis you say also, and the midpoint is known as foramen caecum and lingual tonsil, and this front region is the fill of the test for the sweet, it's the salt, it's the sour and it's the bitter. Four type of the taste region also present in our tongue, and this is the anterior part, this is the posterior part. Sweet, you write down, sweet taste bud present in anterior part in our tongue, anterior part. Bitter taste is present in the posterior part, posterior part in our tongue. Salt is anterolateral, anterolateral region because it is the anterior part and lateral region. So anterolateral region, and sour is the mid lateral region. So these are the region, mid lateral region is the mid part of the tongue. So at the mid lateral region, posterior part, anterolateral region and anterior part. These are the part of the tongue, and anterior part fill the sweet because sweet taste buds present in that region. Salt, anterolateral region, sour, mid lateral region, and bitter in the posterior part. Okay, posterior lateral, posterior part also in finally. And some papilla present in tongue. These papillas are, at first we write down the circumvallate papilla, circumvallate papilla, circumvallate papilla. This is called the circumvallate papilla. This is largest round shape papilla. Is the largest and round shape. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I draw the 8 number, but in general in human being the number is 8 to 12. In human the number is, then number means the number of circumvallate papillas is 8 to 12. Okay, and suppose these are the region of structural part of circumvallate papilla, and the surrounding region of this structure present some pore structure, and this porous structure receive the taste, sensation, taste, sensation received, and this sensation transfer to ninth cranial nerve. Ninth cranial nerve, you know the ninth cranial nerve. जैसे आपको निकालना हो तो मैंने एक फॉर्मूला दिया था, ओ ओ ओ टी टी, आओ फैसला करो, और ओ ओ ओ टी टी, आओ फैसला करो, ओ ओ ओ टी टी, आओ फैसला करो, और गेट से, तो गेट हो जाएगा नाइन्थ नंबर का। तो नाइन्थ नंबर का जो नाम हो गया वो हो गया ग्लोसोफैरिंजियल, ग्लोसोफैरिंजियल नर्व, एंड ग्लोसोफैरिंजियल नर्व रिलेटेड टू टेस्ट। इसमें टेस्ट और दूसरे ऑर्गन से रिलेटेड है, तो टेस्ट स्मेल को इसके बाद क्रेनियल नर्व में भेज देंगे तो ग्लोसोफैरिंजियल टेस्ट से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये हो गया सर्कमवैलेट पेपिला का पॉइंट्स। अब ये जो होते हैं सर्कमवैलेट, ये जो पार्ट है सल्कस टर्मिनल, इसके ठीक नीचे नीचे पाए जाते हैं। तो ये वी आकार के होते हैं, तो ये भी वी आकार में अरेंज होते हैं। तो एक पॉइंट और लिख सकते हो,
कि सरकम वैलेट पेपिला अरेंज इन वी लाइक मैनर, इट अरेंज इन वी लाइक मैनर। क्लियर? इन्हें टेस्ट सेंसेशन को रिसीव कर सकते हैं और वी लाइक मैनर में अरेंज होते हैं। 9 क्रेनियल नर्व को अपने सेंसेशन देते हैं। ह्यूमन में 8 to 12 इसके नंबर होते हैं। क्लियर? और इसमें लार्जेस्ट राउंड शेप, और ये जो नंबर होगा वो मिनिमम होगा, मिनिमम नंबर, क्योंकि इसमें 8 से 12 सबसे कम नंबर है। अब बात करते हैं सेकंड, इसके बाद फोलाइट पेपिला। तो सेकंड जो है फोलाइट पेपिला, इट इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन, वेस्टिजियल इन ह्यूमन। हार्बीवोरस जो काउ हैं, डेयर है, उनमें तो काम करेंगे, बट ह्यूमन में ये फोलाइट पेपिला वेस्टिजियल्स होते हैं, यानी अब्सेसी के रूप में रहते हैं। दिस आर थर्ड फिलीफॉर्म पेपिला, थर्ड फिलीफॉर्म पेपिला। Students, look at this diagram. These are the filiform papilla, and filiform papilla is present in every region in our tongue. In that region, 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 every region our tongue, and their number is maximum and very small in shape. So filiform papilla is maximum in number, very small, बहुत छोटे होते हैं, फाउंड होल रीजन ऑफ टंग, टंग के पूरे रीजन पे ये पाए जाते हैं, और वाइट इन कलर, वाइट इन कलर, इसका कलर जनरली वाइट कलर के होते हैं। लेकिन आपका टंग पिंक दिखता है, इसका काम है फंगीफॉर्म के कारण, फंगीफॉर्म के कारण पिंक दिखता है। लेकिन ये जो वाइट होता है ये कब हो जाता है? जैसे मान लो सपोज आपके हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है, या यू सफरिंग फ्रॉम फीवर, इन द टाइम इन द टेम्परेचर इफेक्ट टंग हैव टू डीएक्टिवेट द फंगीफॉर्म पेपिला एंड एक्टिवेट द फिलीफॉर्म पेपिला, और उस समय ये टंग में जो पूरे रीजन है उसमें स्लाइवा को सर्कुलेट कराने में ज़्यादा अपने आप को यूज़ करते हैं, और नॉर्मल में भी ये स्लाइवा को सर्कुलेट कराने में यूज़ करते हैं। सो फिलीफॉर्म पेपिला के कारण टंग पे वाइट दिखता है, तो वाइट इन कलर ये होता है। और इसका फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इट हैव वन फंक्शन दैट इज सर्कुलेट स्लाइवा इन होल रीजन ऑफ टंग, टंग के पूरे रीजन में स्लाइवा को सर्कुलेट कराने का काम फंगीफॉर्म पेपिला ही करता है। और ये है रह गया, सॉरी फिलीफॉर्म पेपिला करता है, और ये हो गया फंगीफॉर्म पेपिला। फोर्थ फंगीफॉर्म पेपिला। फंगीफॉर्म पेपिला जो होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं, यानी फिलीफॉर्म से बड़े होते हैं, लेकिन सर्कमवैलेट से छोटे होते हैं। तो सबसे बड़े शेप में हो गया सर्कमवैलेट, सेकंड नंबर का हो गया फंगीफॉर्म, सबसे छोटा हो गया फिलीफॉर्म, और फोलाइट पेपिला वेस्टिजियल हो गया, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी है। तो इट इज मीडियम शेप। ये देखने में जो होते हैं मजरूम की तरह होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इसीलिए इसको फंगीफॉर्म पेपिला कहते हैं। और ये जो होता है इसके कारण ही टंग का जो रंग है वो पिंक दिखता है। इट्स प्रोवाइड कलर, पिंक कलर ऑफ द टंग, इट प्रोवाइड पिंक कलर ऑफ द टंग। इसका एक ही काम है कि टंग को पिंक कलर देना, बस। तो देखो इसी जगह लिख लो, आपको याद रहेगा। फंगीफॉर्म का काम क्या है? पिंक
कलर प्रोवाइड करना, पिंक कलर प्रोवाइड करता है ये टंग को। फंगीफॉर्म पेप्यूला स्लाइवा को सर्कुलेट कराता है, सर्कुलेट इन टंग, टंग में स्लाइवा को सर्कुलेट कराएगा। फोलाइट पेप्यूला क्या है? तो ये वेस्टिजियल है, वेस्टिजियल। और सर्कमवैलेंट पेप्यूला क्या है? ये काम करेगा टेस्ट सेंसेशन को लेने में, और टेस्ट सेंसेशन जो होगा वो क्रेनियल ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, क्रेनियल का जो ग्लोसोफेरेंजियल पार्ट है उसमें चला जाएगा। तो ये हो गया पॉइंट। अब देखो इसमें जो वी सैप्ड स्ट्रक्चर है उसका नाम है सल्कस टर्मिनल। तो सल्कस टर्मिनल इज वी सैप्ड। तो वी सैप्ड स्ट्रक्चर जो भी इसमें आप देख रहे हो इसको सल्कस टर्मिनल कहते हैं। ये हमारे टंग के अंदर होता है, बट हम आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पॉइंट में इसको दिखा रखे हैं। और इसके मिड पॉइंट में एक छोटा सा पोर रूबस स्ट्रक्चर है, फोरामेन मैग्नम। तो मिडिल पोरस पार्ट ऑफ सल्कस टर्मिनल, सल्कस टर्मिनलिस भी लिख सकते हो या टर्मिनल लिख सकते हो, टर्मिनल लिखा टर्मिनल। तो मिडिल पोरस पार्ट ऑफ सल्कस टर्मिनल कॉल्ड फोरामेन कैकम, इसी को फोरामेन कैकम कहते हैं, मिडिल पार्ट में जो पोरस स्ट्रक्चर है। बैक पार्ट जो फेरेंजियल रीजन में है 1/3 पार्ट, उसमें लिंगुअल टॉन्सिल पाया जाएगा। टॉन्सिल एक अलग टॉपिक है जिसको मैं आपको अलग से बताऊंगा। नाउ ये भी आपने क्या क्या देखा? तो फंगीफॉर्म पेप्यूला, फिलीफॉर्म पेप्यूला, फोलाइट पेप्यूला, सर्कमवैलेंट पेप्यूला, सल्कस टर्मिनल एंड फोरामेन कैकम। क्लियर? और इसका क्या क्या फंक्शन है? कंप्लीट। स्वीट, सॉल्ट, सोर, बिटर। क्लियर? अब आते हैं इसके इंटरनल पार्ट में। इंटरनल एंड एक्सटर्नल मसल्स इन टंग। इंटरनल एक्सटर्नल मसल्स इन टंग। टंग में किस किस तरह के मसल्स है? सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स। एक्सट्रिंसिक muscles, one muscles that name is extrinsic muscle. This is not the single muscle, the group of the muscles, and this group of the muscles is extrinsic muscles found in outer surface area, outer surface area of tongue. टंग के आउटर सरफेस एरिया में पाए जाएंगे। ये फंक्शन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सट्रिंसिक का। ये जैसे टंग होता है, हमारे टंग को बाहर निकालना या अंदर ले जाना, इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट। तो फंक्शन है इट हेल्प टू इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग। तो टंग के इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। दूसरा जो मसल्स है वह है इंट्रिंसिक मसल्स। इंट्रिंसिक मसल्स, दिस मसल्स प्रेजेंट इन द इनर पार्ट ऑफ टंग। दिस मसल्स प्रेजेंट इन इनर पार्ट ऑफ टंग। इनर पार्ट ऑफ टंग में ये होता है। इसका क्या फंक्शन है? तो ये जो इंट्रिंसिक मसल्स है टंग में, इनर रीजन में, ये टंग को फोल्ड करने में हेल्प करते हैं। तो इट हेल्प टू फोल्ड द टंग। टंग को फोल्ड करने में हेल्प करते हैं। याद रखना, जेनेटिकल इनहेरिटेंस के कारण इंसानों में बहुत सारे इंसान ऐसे भी होते हैं जो अनफोल्ड टंग वाले होते हैं, यानी उनका इंट्रिंसिक मसल्स काम नहीं करता है तो टंग को फोल्ड नहीं कर पाते हैं। यानी हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, 90% से 95% लोग होते हैं जो टंग को फोल्ड कर पाते हैं, तो ये इंट्रिंसिक मसल्स हेल्प करते हैं। लेकिन 5% ह्यूमन ऐसे भी होते हैं जो टंग को फोल्ड नहीं कर पाते हैं पीछे की तरफ, जैसे चाहे तो मोड़ना, ये पीछे की तरफ नहीं मोड़ पाते हैं। लेकिन जनरली सभी दूसरे काम में
इसका सपोर्ट लेते हैं, जैसे मूवमेंट एंड पोजीशन शिफ्ट इन द टाइम ऑफ टॉकिंग। हो सकता है कि वो टंग को मोड़ नहीं पाए, लेकिन इस दुनिया में सबको बोलना है और बोलते समय टंग के पोजीशन शिफ्ट होते हैं अलग अलग वर्ड के अकॉर्डिंग, एंड दिस शिफ्टिंग पोजीशन में सबके लिए ये काम करते हैं, 100% ह्यूमन बीइंग में ये काम करते हैं। तो मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द टाइम ऑफ द टॉकिंग ये इसमें हेल्प करेगा। तो इंट्रेंसिक मसल्स का ये फंक्शन है और एक्सट्रेंसिक मसल्स का ये फंक्शन है। क्लियर? अब एक पार्ट जो मस्कुलर फॉर्म में ही है। अब देखो, मैं इस टंग के बैक पार्ट की बात कर रहा हूँ। ये अपर सरफेस हो गया, इसके लोअर सरफेस भी होगा। सपोज ये अपर सरफेस है तो ये इसका लोअर सरफेस है। तो फ्रंट पार्ट में, क्योंकि ये फ्रंट रीजन है, फ्रंट पार्ट को जब मैं अपने टंग को मोड़ता हूँ ऐसे, तो देखो ये लोअर जो है और ये टंग है, लोअर जो और टंग के बीच में एक ऐसे बीच में एक मसल्स है। तो ये लोअर जो और टंग के बीच में, मैं बैक पार्ट की बात कर रहा हूँ, टंग के बैक पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो लोअर जॉ एंड लोअर जॉ एंड टंग, ये जो होते हैं इनके बीच में एक मस्कुलर कनेक्शन होता है। इसका नाम होता है फ्रेनुलम लिंगुआ। फ्रेनुलम लिंगुआ ए मस्कुलर स्ट्रक्चर, ए मस्कुलर स्ट्रक्चर present, that means in that lower part of this tongue and connect to the jaw, a muscular structure is present that is known as frenulum lingua. And this frenulum lingua, sometimes some books write down the only frenulum, so you write down frenulum or frenulum lingua, these are the no matter, they are the same thing. And frenulum lingua support to hold the tongue from anterior part, एंटीरियर पार्ट में होल्ड करने में सपोर्ट करेगा। तो होल्ड टंग फ्रॉम एंटीरियर पार्ट, तो टंग को एंटीरियर पार्ट से होल्ड करने में सपोर्ट करेगा। अब बहुत सारे बच्चों में क्या होता है, ये थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, इसका शिफ्टिंग थोड़ा आगे की तरफ होल्ड हो जाता है, और ये टंग मान लो यहाँ से होल्ड होना चाहिए था, और ये ऐसे जॉ है और ये टंग इतना तक जा रहा है, लेकिन ये यहाँ से होल्ड हो गया सपोज यहाँ से, और ये जा नहीं पा रहा, तो टंग में प्रॉब्लम्स होती है बोलने में। तो ऑपरेशन से फिर ये मसल्स को काट करके इस शिफ्टिंग पॉइंट तक ले आते हैं, फिर ये मूव करता है टंग यहाँ से यहाँ तक, तो वो बोल पाता है। दैट मीन्स कभी कभी टंग में ऐसा भी प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं, और ये प्रॉब्लम्स बाय बर्थ भी हो सकते हैं, चोट लगने के बाद भी किसी कारण से मस्कुलर जो रीजन है बहुत दिनों तक साथ रह गए और स्वेलिंग हो गया टंग में, तो एक दूसरे से चिपक के रह गए, तो उसके कारण जॉइंट्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अदरवाइज ये नॉर्मली अलग ही रहते हैं, कभी एक साथ जुड़ते नहीं हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल पार्ट। ठीक है, अब तक आपने इसमें सारे पेपिला, इसके टेस्ट पॉइंट्स, इसके क्या फंक्शन है, और मसल्स ऑफ द टंग और एंटीरियर पार्ट में जो मसल्स है वो पूरा देख लिए। इंग्लिश लेक्चर। स्टूडेंट्स, you know, in the digestive system, the mouth region present various structural part. One is buccal cavity, palate, tongue, tonsil and teeth. In the previous lecture, we have to complete the buccal cavity, upper jaw and lower jaw. The cavity region is known as buccal cavity. Palate is present. Palate is two types, hard palate and soft palate, you know. And third is the tongue. What is the structure of the tongue and what are the functions of the tongue, you have to retain and complete in the previous lecture. In the today we explain the tonsil. In the mouth region, the tonsils have to present. Tonsil is most important in mouth region because when any type of the pathogen enter in our mouth or buccal cavity, at that time tonsils have power to destroy the pathogens or holding the pathogen in buccal cavity region or in the throat region. So pathogen have no power to infect other organs. So tonsil is
tonsils is the part of lymphatic system. Lymphatic system forms tonsil in buccal cavity and pharynx region. Really, lymphatic system form the tonsils. So, lymphatic system have power to destroy any type of pathogen. So, tonsils is the part of the lymphatic system. So, it have also power to destroy different type of pathogen. So, tonsil destroy, kills or holding different types of pathogen. Suppose this is the structural part in our mouth region, and this is the palate, hard palate and soft palate, and this is the nasopharyngeal region, and that is the nasal cavity, and this is the part of lower jaw, and in this region is called the buccal cavity. You know, in this region found the pharynx, and pharynx is the common part for respiration and food, and this is the nasal chamber region. When any type of the pathogen, suppose this white spots are the pathogen, and when any type of pathogen enter through respiratory path, then this pathogen when enter in that region, then tonsils have power to kill this pathogen. Or mouth region, suppose this is the buccal cavity region, and when any type of pathogen enter in mouth region, these are also the pathogen, and this pathogen when passes this part to this part and they try to enter into internal organ, in that time tonsil have to activate. Many tonsils have to present in our mouth. Suppose these are the tonsil, these are the tonsil, these are the tonsil, these are the tonsil, pharyngeal region also present the tonsil. So, these are the tonsils, and these tonsils have power to destroy this type of pathogens. Tonsils release different type of chemicals, and they have to paralyze the pathogen or kill the pathogen or sometime hold the pathogen. So, when any type of the virus or bacteria or any type of the harmful product try to enter from mouth to inner part in our body, in the time tonsil have to activate and they have to destroy this type of pathogen. So, this pathogen not infect other organs in our body, and this pathogen have to destroy. So, tonsils main function is to kill the pathogen. So, main function is holding different type of pathogen, one function. So, its function is holding or killing pathogens. Second function is to normal activity in buccal region. Suppose saliva that secreted by the salivary gland, and that saliva, the viscosity, the tar effect and different type of activities is controlled with the help of this tonsils also. Tar effect means when the fiber like structures form in our mouth, that is the tar form, and fiber like structures is generally not formed, and because saliva is very liquid part and liquid form, and saliva activate in that region. So, tonsils have to kill the pathogen, and very easily this type of liquid part or saliva have to normal activity. Saliva also support to tonsil sometime when the number of the pathogen is maximum,
in the time this saliva have to mix with this pathogen, and when pathogen have to mix with saliva, in the time this pathogen have to destroy, because saliva have antiseptic, antibiotic and preservative power. Student, now this tonsil have capacity to activate antibody formation. AB means antibody formation against pathogen. They have to activate, that means excited, or they have to motivated form of the plasma, and plasma have to start form into antibody. Antibody form in the plasma, antibody formation place is blood plasma. Inside plasma form antibody, and this antibody have to start formation after activity or excitement of tonsil. So tonsil have to activate to antibody formation in the plasma part, start to antibody formation, and that antibody enter in this region, and when antibody enter in this region, in that time this pathogen have to destroy. जैसे आप जानते हो कि आप कुछ भी खाते हो और उसमें अगर कोई पैथोजेंस है, तो वो फूड तो आपके माउथ में एंटर हो रहा है, बट फूड में जो भी माउथ से आपके स्टमक में जा रहा है, बट फूड में जो भी पैथोजेंस है, उस पैथोजन को किल करने के लिए ये बहुत एक्टिवेटेड फॉर्म में वर्क करता है. जैसे आज मैं ब्रीदिंग फॉर्म में नाक नोज पास से कोई एंटीबॉडी कोई पैथोजन आ रहा है और माउथ रीजन में कोई पैथोजन आ रहा है, तो उस सभी पैथोजन को ये कुछ दिनों तक रोक सकता है यहाँ पर. इसलिए पैथोजेंस डायरेक्टली आपके स्टमक में या आपके लंग्स में नहीं जा रहे हैं, कुछ दिनों तक इस माउथ वाले रीजन पे, थ्रॉट वाले रीजन पे ये रहते हैं. और उस समय अगर हल्का सा गर्म पानी जो पिया जाए, तो ये जो होता है पैथोजन, ये इनएक्टिवेट होने लगते हैं, क्योंकि पैथोजन के ऊपर में बहुत सारे प्रोटीन या लिपिड के लेयर होते हैं जो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते हैं, और ये जो भी इसमें टॉन्सिल्स है उसको हल्का गर्म पानी मिलने पे वो एक्टिवेट होने लगते हैं. तो बच्चों याद रखिए, आजकल जो बीमारी चल रहे हैं, उस बीमारी के दौर में या पहले भी हम लोग हमेशा ये कहते आए हैं कि गले के हिस्से में कभी भी इन्फेक्शन हो जाए तो गले में दर्द होता है, टॉन्सिल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाता है. तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग हल्का सा गर्म सुसुम पानी, जिसे हम पी सकते हैं, उसको ड्रिंक के फॉर्म में लेते हैं. पानी को जैसे लेते हैं तो इस रीजन से जैसे ही स्टमक तक पहुंच जाता है, स्टमक में HCl होता है, HCl उस पैथोजन को और डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन माउथ रीजन पे जो रह जाते हैं उनको टॉन्सिल और अच्छी तरह से मार सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि एंटीबॉडी के फॉर्म एक्टिवेट कर सकता है ये. इसके अलावा ये पैथोजन के जो लेयर होते हैं उसको हल्का गर्म पानी मिलते ही वो लेयर टूट जाते हैं लिपिड या प्रोटीन के, तो भी ये टॉन्सिल एक्टिवेट हो जाते हैं और उन पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो बहुत सारे पैथोजन दिन भर में हम बोलते समय या ब्रीदिंग के फॉर्म में हमारे इस माउथ और बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स के रीजन से पास आउट हो रहे हैं, बट इन दिस रीजन टॉन्सिल हैव टू एक्टिवेट और ये इसको डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं. लेकिन मान लो हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, फ्रिज खोले ठंडा पानी पीने लगे, एक तो ठंडा पानी टॉन्सिल्स में स्वेलअप क्रिएट करते हैं. अब अगर टॉन्सिल खुद स्वेलअप हो गया, सूजन हो गया, तो वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाएगा, और पैथोजन को ठंडे पानी मिलने पर वो और अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ठंडे मौसम में पैथोजन से एक्टिविटी बढ़ जाता है. तो इसलिए हमें हमेशा या तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी पीना चाहिए या हल्का गर्म पानी जिससे गले से गुजर सके, ऐसा गर्म पानी पीना चाहिए. तो इस रीजन पे अगर कोई पैथोजेंस है तो आपके सपोर्ट से जो आपने गर्म पानी पिया उससे ये डिस्ट्रॉय होने लगे और टॉन्सिल्स ने भी डिस्ट्रॉय कर दिया. तो माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, थ्रॉट, इस रीजन पे कोई भी इन्फेक्शन के चांस जनरली नहीं होंगे. तो ये था टॉन्सिल्स के वर्क. अब देखो, इन ह्यूमन बीइंग 4 टाइप ऑफ टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट. टाइप्स ऑफ टॉन्सिल, टाइप्स ऑफ टॉन्सिल इन ह्यूमन. हमारे पास किस किस तरह के टॉन्सिल्स है? तो हमारे पास 4 टाइप के टॉन्सिल्स है. वन इज
pharyngeal tonsil, second is lingual tonsil, third is palatine tonsil, and fourth is tubal tonsil, और ये सभी के जो प्रकार हैं चारों, ये हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये जो टॉन्सिल्स होते हैं ये एक रिंग के फॉर्म में रहते हैं और पूरे बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स तक ये फैले होते हैं, और ये जो रिंग होता है इस रिंग के फॉर्म को वेल्डियर रिंग कहते हैं। तो वन टर्म इज वेल्डियर रिंग, when all types of pathogen, all types of tonsil present in a ring like manner, so this arrangement is called Valdier ring. अब रिंग लाइक मैनर में जो भी इसमें टॉन्सिल्स अरेंज होंगे उसी को वेल्डियर रिंग बोलते हैं। और इसमें सपोज ये बक्कल कैविटी फेरिंग्स रीजन पे लिम्फेटिक सिस्टम के सपोर्ट से जो भी टॉन्सिल्स बन रहे हैं वो स्पेसिफिक प्लेस पे अरेंज होंगे। जैसे टंग के बैक पार्ट, ये इसमें एक ऐसा टॉन्सिल है और इसमें ऐसा टॉन्सिल है, और ये जो टॉन्सिल्स होते हैं इसका नाम होता है लिंगुअल टॉन्सिल। इट इज़ प्रेजेंट इन द बैक पार्ट ऑफ टंग के ठीक नीचे फेरिंग्स के रीजन पे। सपोज दिस इज़ द रीजन ऑफ फेरिंग्स, और फेरिंग्स के रीजन पे, ये फेरिंग्स का रीजन हो गया गले के पास। फेरिंग्स इज द कॉमन पार्ट ऑफ द ब्रीदिंग एंड फूड, दोनों के पास करते हैं। तो इस रीजन पे जो टॉन्सिल है उसके स्ट्रक्चर इस तरह से हैं, और ये जो है दिस आर कॉल्ड नैजोफेरेंजियल टॉन्सिल। इस टॉन्सिल का नाम है नैजोफेरेंजियल टॉन्सिल। एंड कान से एक ट्यूब माउथ के रीजन में इधर से और इधर से दो ट्यूब, एक इस साइड से एक इस साइड से मिडिल ईयर से एक ट्यूब आता है, उसका नाम है स्टेकियन ट्यूब। सपोज ये हमारा ईयर है और इसमें ये मिडिल पार्ट है, तो मिडिल पार्ट ईयर से एक ट्यूब आ रहा है ऐसे, और ये इसमें मिडिल रीजन हो गया, और मिडिल ईयर जो होता है इस मिडिल ईयर से एक ट्यूब आ रहा है। ये जो ट्यूब है इसका नाम है स्टेकियन ट्यूब, और इस ट्यूब का जो पोर होता है जहाँ खुलता है इसका नाम है स्टेकियन पोर। ये जो स्टेकियन पोर है वो इस साइड में एक है, इस साइड में एक है, यानी ये पैलेट के प्लेस है, पैलेट के किनारे, दोनों पैलेट, जो हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट, उसके किनारे पे ये पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ऐसा भी नहीं कि आप इसे देख पाओगे, ये मेम्ब्रेन से ढका होता है, लेकिन ये रीजन इन्फेक्टेड रीजन हो सकते हैं, क्योंकि इस रीजन में मान लो फूड के द्वारा कोई पैथोजन एंटर कर गया और वो इस रीजन पे एंटर कर गया। इस रीजन पे एंटर करने का मतलब है कि ये यहाँ से होता हुआ पैथोजन ईयर रीजन तक पहुँच जाएगा और ईयर के मिडिल रीजन या इंटरनल रीजन को इन्फेक्ट कर देगा, तो हो सकता है कि आदमी बहरा हो जाए। तो उसको बचाने के लिए इस रीजन पे एक और इस रीजन पे एक दो टॉन्सिल्स, इसमें छोटे पार्ट्स होते हैं बहुत सारे, जो हमेशा टूटते बनते रहते हैं। इसमें रिपेयरिंग पावर होती है, सेल्फ रिपेयरिंग होता है, और ये जो पार्ट है इसका नाम है ट्यूबल टॉन्सिल। और ट्यूबल टॉन्सिल जो होंगे वो किसको सराउंड करेगा, तो ये जो है इसका नाम है स्टेकियन पोर। तो स्टेकियन पोर को ये घेर के रहता है, और ये पोर जो होता है ये इस तरह से मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, तो ये पोर आपको दिखेगा नहीं,
बट इस समय मैं आपको इस पोर को शो ऑफ कर रहा हूँ कि ये पोर को दोनों तरफ से घेर रहा है एंड इस दोनों रीजन पे ट्यूबल टॉन्सिल है। और लोअर जॉ के इस रीजन पे, गले के और इस लोअर जॉ के नीचे नीचे यहाँ पर छोटे छोटे दो, एक इस साइड में और एक इस साइड में, लेफ्ट और राइट, दो बीन सैप्ड टॉन्सिल होते हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में। दिस बीन सैप्ड टॉन्सिल इज कॉल्ड एज पैलेटाइन टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, इसमें पैलेटाइन टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप के टॉन्सिल हो गए, नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल एंड लिंगुअल टॉन्सिल। और ये जो 4 टाइप के टॉन्सिल्स है ये हमारे माउथ में पूरी तरह से रिंग फॉर्म में पाए जाते हैं। इस रिंग फॉर्म को ही वेल्डियर रिंग कहते हैं। दिस रिंग फॉर्म इज कॉल्ड वेल्डियर रिंग। तो क्लियर हो गया, वेल्डियर रिंग कोई अलग सा पार्ट नहीं है, बट अरेंजमेंट ऑफ द टॉन्सिल इज नोन एज वेल्डियर रिंग। तो फेरिंग्स के रीजन पे हुआ तो नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल, ट्यूब के स्टेकन ट्यूब के रीजन पे हुआ या उसके पोर के रीजन पे हुआ तो ट्यूबल टॉन्सिल, लोअर जॉ के जो पार्ट होती है मस्कुलर रीजन वहाँ पर हुआ तो पैलेटाइन टॉन्सिल, और टंग के बैक पार्ट में हुआ तो लिंगुअल टॉन्सिल। ये 4 टाइप के टॉन्सिल्स। अब इसके वर्क और इसके फंक्शन देख लो। पहला नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल, स्टूडेंट्स, nasopharyngeal tonsil found in the region of the pharynx. It is found in the region of pharynx और इसका काम है पैथोजन को डिस्ट्रॉय करना। सभी का काम है पैथोजन को डिस्ट्रॉय करना, इसका ये वर्क है। लेकिन सपोज इफ पैथोजन is more powerful, if pathogen is more powerful than nasopharyngeal tonsil swell up, ये फूल जाते हैं। यानी अगर ये पैथोजन इतना पावरफुल है, इसका काम है पैथोजन को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन अगर पैथोजन मोर पावरफुल है और पैथोजन ही नेजोफेरेंजियल को स्वेल अप कर दिया, इन्फेक्टेड करके फुला दिया, तो ये नेजोफेरेंजियल क्या होता है, नोज से जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं वहां से जो फेरिंग्स के रास्ते गैसेस लंग्स में जाएगा ट्रैकिया वगैरह होते हुए, तो उसको वो रुकावट उत्पन्न करेगा, उसमें वो ब्लॉकिंग क्रिएट करेगा। सो ब्रीदिंग is problematic और पेनफुल, क्योंकि इस समय जो ब्रीदिंग होगा वो उसमें फोर्स लगाना होगा और उस फोर्स के फॉर्म में जब ये एयर एंटर करेगा हमारे लंग्स के और उस समय नेजोफेरेंजियल के ऊपर से होता हुआ उसको प्रेशर देता हुआ जाएगा तो पेनफुल होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद मेडिसिन वगैरह लेकर के नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल को नॉर्मल किया जा सकता है, या कुछ भी नहीं लेना है मेडिसिन वगैरह तो नॉर्मल गर्म पानी में हल्का नमक डालकर, इतना गर्म थोड़ा सा कि गले को वो ज़्यादा हार्म ना पहुंचाए, मतलब अपने को पता लग जाता है कि ये गर्म पानी हम पी सकते हैं ऐसा, और उसको हम ऐसे लेकर के अगर गरारे करते हैं तो भी गले के रीजन में जो नेजोफेरेंजियल रीजन है उसमें इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है और ये नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल नॉर्मली वर्क करता है। क्लियर। अब आते हैं दूसरा, इसमें नंबर पे लिंगुअल टॉन्सिल लिखा है, तो सेकंड इज लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल आप तो जानते हो कि मैंने टंग के डायग्राम में ड्रॉ किया था, टंग के बैक पार्ट में लिंगुअल टॉन्सिल होता है, तो इट प्रेजेंट इन बैक पार्ट ऑफ टंग के बैक पार्ट में होगा। किल्स पैथोजन, ये पैथोजन को किल करने का काम करता है। लेकिन मान लो कि इसमें भी इन्फेक्शन हो गया, तो इसमें भी इन्फेक्शन हो गया, पैथोजन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो देखना गले के हिस्से में पेन होता है,
तो ये कभी कभी क्या करता है कि इफ पैथोजन इज पावरफुल देन पेन इन थ्रॉट रीजन, गले के पास दर्द होता है, इसका भी वही इलाज है, गर्म पानी से गरारे, और इससे फिर ये ठीक हो जाता है। यानी सोचो, गर्म पानी पीना हल्का सा या गर्म पानी के गरारे करने से ये सारे टॉन्सिल नॉर्मल वर्क करने लगते हैं। तो इन टॉन्सिलों को नॉर्मल वर्क मिल जाए तो ये सारे पैथोजन को किल कर देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे, उसको सेंसराइज कर देंगे। तो ये काम ये खुद कर सकता है, केवल हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट के फॉर्म में हल्का गर्म पानी या जो मटके का पानी है वो गर्म पीते हैं तो ये टॉन्सिल नॉर्मल वर्क करते हैं, और ये सारे पैथोजन जो भी पावरफुल है वो इसको लॉस नहीं कर पाएंगे, इसके ऊपर कोई हार्म नहीं होगा। अब आते हैं थर्ड टाइप, इसमें पैलेटाइन टॉन्सिल। थर्ड टाइप इज पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेटाइन टॉन्सिल, इट्स प्रेजेंट in muscular region of lower jaw। जो लोअर जॉ होता है उसके मस्कुलर रीजन पे, जैसे हमारे गले के ऊपर ये जो लोअर जॉ है इसके इस किनारे पे एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों जगह पे दो बीन सैप्ड होते हैं। इसका शेप होगा बीन सैप्ड टॉन्सिल, यानी टॉन्सिल बीन सैप्ड होते हैं। नॉर्मली पिंक कलर, इसका कलर पिंक होता है, और ये सबसे ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, मोस्ट एक्टिव अगेंस्ट पैथोजन के अगेंस्ट ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। अब जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, पैथोजन अगर पावरफुल है तो उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा हमला भी करेगा, तो इस टॉन्सिल के ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। इसलिए छोटे बच्चों में या जीवन में कभी न कभी हम लोगों के सभी में ऐसा देखा होगा कि गले के इस जगह पे दर्द हो रहा है और ये फूल जाते हैं, उसमें स्वेल्ड अप हो जाते हैं। अगर पैथोजन बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो ये जो होता है, पैथोजन अगर पावरफुल है तो ये पैलेटाइन स्वेल्ड अप हो जाते हैं पैथोजन के कारण। स्वेल अप हो गया, फिर भी कोई बात नहीं, स्वेल अप हो गया तो हम क्या करते हैं, कपड़े में थोड़ा नमक लेते हैं, फिर उसको गोल सा बनाकर तवे को गर्म करके, हल्का सा गर्म करके हाथ में छू के देखते हैं, हाथ सही है तो इसको यहाँ लेते हैं ऐसा करके, तो इसके अंदर जो वाटर लेवल बढ़ गया है और जो इसका इन्फेक्शन रेट बढ़ गया है पैथोजन के कारण, वो नॉर्मलाइज हो जाता है और ठीक हो जाता है 4-5 दिन 6 दिन। लेकिन कभी कभी रेयरली किसी में ये पैलेटाइन टॉन्सिल जो होगा मोर इन्फेक्टेड हो जाते हैं और फिर ये अपने आप को नॉर्मल फॉर्म में नहीं ला पाते। वैसे किसी बच्चे को इन्फेक्शन हुआ 1 मंथ 2 मंथ 12 मंथ 24 मंथ यानी 1-2 साल तक इन्फेक्शन रहा, तो बेचारा जब भी कोई चीज़ पिएगा या खाना खाएगा तो उस समय उसको निगलने में, स्वेल अप करने में बहुत दर्द होगा। तो ऐसा अगर कई सालों तक इन्फेक्शन होता है और कई सालों तक स्वेल अप होने के बाद ये पैलेटाइन टॉन्सिल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो सकता है, कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तब क्या करते हैं डॉक्टर कि इस पैलेटाइन टॉन्सिल को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, इसको टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। एक टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, टॉन्सिलेक्टोमी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सब में होगा और हमेशा करना होगा, ये अंतिम उपाय है, क्योंकि एक बार सर्जिकल रिमूव हो गया तो फिर कोई चांस नहीं कि ये फिर से ग्रो हो जाए। टॉन्सिलेक्टोमी अगर करना होगा तो लास्ट उपाय है, 1-2 साल से इन्फेक्टेड है, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कैंसरस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, उस कंडीशन में डॉक्टर इस पैलेटाइन टॉन्सिल को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। तो व्हेन पैलेटाइन टॉन्सिल सर्जिकली remove, then it called tonsillectomy, then it called tonsillectomy।
तो इस समय इसको टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। ये बहुत रेयरली होगा लेकिन ऐसा किया जा सकता है। तो फिर से याद रखना कि नॉर्मल टॉन्सिल का इन्फेक्शन 6-7 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर वो साल 2 साल रह गया तो इस समय डॉक्टर अंतिम उपाय के रूप में टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं। अब इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके पास टॉन्सिल्स बहुत सारे हैं, नेजोफेरेंजियल के बाद भी बॉडी में कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब आते हैं फोर्थ टाइप के, तो 3 हो गए, अब फोर्थ है ट्यूबल टॉन्सिल। फोर्थ टॉन्सिल इज ट्यूबल टॉन्सिल। ट्यूबल टॉन्सिल आप जानते हो, इट सराउंड स्टिकियन पोर and protect Stichian pore and Stichian tube region against पैथोजन। यानी ये पैथोजन के इन्फेक्शन से इस स्टिकियन ट्यूब के पोर या उसके पूरे ट्यूब के रीजन को बचा लेगा और इस तरह से ट्यूबल टॉन्सिल वर्क करेगा। इसके अलावा बक्कल रीजन पे तो वर्क करेगा ही करेगा, बक्कल रीजन पे ये वर्क करेगा और बक्कल रीजन पे अगर कोई नॉर्मली पैथोजन है तो उसको भी वो डिस्ट्रॉय करने में सपोर्ट करेगा। तो देखा आपने, हमारे पास जो टॉन्सिल होते हैं वो इस तरह से होते हैं। अब मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ 1 मिनट में। देखो, टॉन्सिल जो होते हैं इज द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी एंड फेरेंजियल रीजन। टॉन्सिल्स का फंक्शन बात करें तो होल्डिंग एंड किलिंग द पैथोजन, नॉर्मली एक्टिवेट इन बक्कल कैविटी। टॉन्सिल क्योंकि जो स्लाइवा होता है उसको एक्टिविटी प्रदान करता है। टॉन्सिल्स हैव कैपेसिटी टू एक्टिवेट एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट पैथोजन, और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ब्लड प्लाज्मा में होगा और वहाँ से एंटीबॉडी यहाँ तक आ जाएगा और इस पार्ट को डिस्ट्रॉय करके, इस पार्ट में जो पैथोजन है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और इस पार्ट को प्रोटेक्ट कर लेगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टॉन्सिल ह्यूमन में कितने होते हैं, तो 4 टाइप के, नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल। अब देखो, ये जो टॉन्सिल्स होते हैं ये चारों एक रिंग के फॉर्म में होते हैं और इस रिंग के फॉर्म को वेल्डेर रिंग बोलते हैं। इसमें हमने बताया है कि ये जो वेल्डेर रिंग है ये कोई अलग सा पार्ट नहीं है, इस चारों के ग्रुप को वेल्डेर रिंग कह रहे हैं। और ये जो पॉइंट है ये मैंने टाइप्स के फॉर्म में लिख रखा है। पहला नेजोफेरेंजियल, ये फेरिंग्स के रीजन पे, और कभी इसमें ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए, ये स्वेल अप हो जाए तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज ये पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेगा। लिंगुअल टॉन्सिल, ये जनरली किल द पैथोजेंस एंड ए पैथोजन इज पावरफुल देन पेन थ्रॉट रीजन पे पेन हो सकता है। पैलेटाइन टॉन्सिल, इसके लिए एक टर्म याद रखना कि पैलेटाइन टॉन्सिल्स जो होते हैं ये नॉर्मली स्वेल अप होकर फिर नॉर्मल हो जाते हैं, ये सबके साथ होते रहते हैं, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन अगर ये 2 साल तक ये बीमारी रह गया तो डॉक्टर्स लास्ट उपाय के रूप में इसको ऑपरेशन से निकाल देते हैं और दोनों को निकालना पड़ेगा। इन्फेक्शन होगा तो दोनों में होगा, दोनों साइड में, और ये टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। और ट्यूबल टॉन्सिल स्टिकियन ट्यूब एंड उसके पोर को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि ईयर, कान का जो हिस्सा होता है वो नॉर्मल रहे, और बक्कल कैविटी के पार्ट में भी ये वर्क करते हैं। तो ये जो पार्ट हैं ये पूरे के पूरे प्रोटेक्टिव सिस्टम के रूप में इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और माउथ रीजन पे जो भी इन्फेक्शन के चांस है उसको भरसक कम करते हैं। सो टॉन्सिल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द बक्कल रीजन एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजन। ओके स्टूडेंट्स।